محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR کے ہاتھوں 21 ایمبولینس کا افتتاح. کورونا کی مشکل حالات میں بڑی راحت. تقریب میں آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے کی شرکت. دسہرے سے قبل جدید کلیکٹریٹ کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی نے دی عہدیداران کو ہدایت. درگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس شریف کا آغاز. کورونا وبا کے مد نظر قوالی منسوخ. محدود انداز میں عرس شریف کا انعقاد. MLC انتخابات کے لیے ضلع میں تیاریاں زوروں پر. تمام عہدیدار تیاریوں میں مصروف. ہر طبقے کی ترقی کے لیے TRS پارٹی کوشاں. آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی جانب سے کرسچن بھون کی تعمیر کے لیے اراضی و رقم کا اعلان. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR کی جانب سے ایمبولینس کا افتتاح عمل میں لایا گیا. ریاستی وزیر بلدی نظم نقش KTR کی سالگرہ کے موقع پر شروع کردہ گفٹ اسمائل پروگرام کا انعقاد زوروں شوروں سے جاری رہنے کے ساتھ دیگر حلقہ جات سے تعلق رکھنے والے MLAs کی جانب سے ریاستی وزیر KTR کی سالگرہ کے موقع پر 21 ایمبولینس کو دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے عوام کی خدمات کرنے کے لیے فراہم کیا گیا ہے. اس ایمبولینس سے تعلق رکھنے والے پروگرامز کو پرگتی بھون میں منعقد کرنے پر اس میں دیگر وزراء کی موجودگی میں ریاستی وزیر KTR نے ایمبولینس کو جھنڈا لہرا کر افتتاح عمل میں لایا. اس پروگرام میں آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، راجندر ریڈی، MLC مہندر ریڈی و دیگر نے شرکت کی. ضلع کلیکٹر سی نارائن ریڈی کی اپیل کے مطابق سری لکشمی چیوتا سیوا سمیتی کی نگرانی میں ریڈ کراس بلڈنگ کے پاس خون کا عطیہ کیمپ پروگرام منعقد کیا گیا. ضلع نظام آباد کلیکٹر سی نارائن ریڈی نے گزشتہ دنوں قبل ہی خون کی سفید و سرخ جسیمے کی کمی کے باعث مریضوں اور حاملہ خواتین کو ہونے والے مشکل ترین حالات سے نجات دلانے کے لیے خود مختار تنظیم کی جانب سے پہل کرتے ہوئے خون کا عطیہ دیگر قیمتی جانوں کا تحفہ کرنے کا ضلع کلیکٹر کی جانب سے اپیل کرنے پر 2 تاریخ کو گاندھی جینتی اور لال بہادر شاستری کی یوم پیدائش کے مد نظر سری لکشمی چیوتا سیوا سمیتی کی نگرانی میں ریڈ کراس بلڈنگ کے پاس ریڈ کراس کے ممبر ٹوٹا راجو شیکھر رویندر کی موجودگی میں 25 افراد کی جانب سے خون کا عطیہ دیا گیا. اس پروگرام میں رمنا چاری، لکشمن سدانندم چاری، وینو گوپال راؤ، بالا راجو سرینیواس نے منعقد کیا. اس موقع پر چیوتا کے صدر جناب رمنا چاری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خون کی شدید ضرورت ہونے پر خون فراہم کرنے کے ساتھ حکومت کی جانب سے شروع کردہ ہریت حرم کے تحت شجرکاری انجام دینے کا بھی انکشاف کیا. درگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس کا اہتمام. کورونا وبا کے مد نظر قوالی کا اہتمام نہیں، مختصر انداز میں عرس کا کیا جا رہا ہے اہتمام. شہر نظام آباد منڈل بودھن میں واقع مشہور معروف درگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کا اہتمام کورونا وبا کے مد نظر مختصر انداز میں کیا جا رہا ہے. آج سندل مالی کا اہتمام کیا گیا اور کل چراغوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. واضح ہے کہ اس بار قوالی کا اہتمام عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے. اس موقع پر درگاہ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا کے خد و خال پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم تعداد میں درگاہ پر حاضری دے کر ثواب کمائیں. نظام آباد مقامی اداروں کونسل حلقے کے لیے کے کویتا TRS کی طاقتور امیدوار. کانگریس اور BJP انتخابی منظر سے غائب. 90% ووٹ حاصل کرنے TRS کی منصوبہ بندی. نظام آباد مقامی اداروں کے کونسل انتخاب میں TRS امیدوار کے کویتا کا مضبوط موقف. TRS کی جانب سے 90% ووٹ حاصل کرنے کی تیاری. کانگریس اور BJP کے امیدوار مقابلے میں بھی نہیں. دونوں جماعتوں کے مقامی اداروں سے منتخب امیدوار
बड़े पैमाने पर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। टीआरएस की उम्मीदवार के कविता की राय दही से कब्ल कामयाबी यकीनी हो गई है। ताहम टीआरएस के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और दूसरे कायदीन लोकसभा के इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 के कविता को ज्यादा से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के एमपीटीसी, जेडपीटीसी, अरकान और कॉर्पोरेटर्स को टीआरएस में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने सुभाष रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने पी लक्ष्मी नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया है, मगर दोनों जमातों के उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों के मुंतखब अवामी नुमाइंदों से राब्ते में नहीं है और राय दही से कब्ल शिकस्त कबूल कर चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी माणिक्यम टेगोर ने हैदराबाद में 3 दिन क़याम किया और जीएचएमसी ग्रेजुएट कोटा कौंसिल इंतखाबात का जायजा लिया, मगर निजामाबाद मुकामी इदारों के कौंसिल इंतखाबात को इस तरह नजरअंदाज किया कि वहां कोई इंतखाबात ही नहीं है। हल्के लोकसभा निजामाबाद पर बीजेपी का कब्जा है, बावजूद इसके बीजेपी कायदीन इंतखाबी मुहिम से कोसों दूर है और पार्टी कायदीन को वफादारियां तब्दील करने में भी नाकाम है। इस हल्के में जुमला 824 वोट है, जिसमें कांग्रेस के 154 वोट है। अभी तक 60 से ज्यादा कायदीन टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। टीआरएस की अददी ताकत 570 थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन की टीआरएस में शमूलियत से टीआरएस की अददी ताकत 640 है। 9 अक्टूबर को राय दही मुकर्रर है। इस दौरान मजीद कायदीन के टीआरएस में शामिल होने का इम्कान है। मुल्क में हो रहे मुसलसल दर्दनाक असमत रेजी के वाक़यात पर रैप सॉन्ग के जरिए रैप स्टार सलमान मिर्जा ने किया इजहार। मोइनाबाद असमत रेजी केस और फिर यूपी में मनीषा नामी तालिब इल्म का दर्दमंदाना असमत रेजी, जिस पर पूरा हिंदुस्तान गम व गुस्से का इजहार कर रहा है और अवाम के इसी दर्द को हमारे बोधन के सलमान मिर्जा रैप स्टार ने अपने रैप सॉन्ग में इजहार किया है, जो गाना सिर्फ चंद घंटों में तैयार किया गया है और अवाम में काफी मकबूल हो गया है। के पन्नों में फिर छपी गई दर्दनाक खबर, देख के उस बिचारी को भरसा गया है मेरा जिगर। बड़ी जिंदा लाश वो अपने घर में, ना कानों कान किसी को खबर। ओ सॉरी, हम तो बिजी थे बताने में रिया और कंगना की खबर। क्यों बात करता न कोई, जो बीता उस बिचारी लड़की पर रूह कांप जाती है मेरी जब भी होता है उसका जिक्र। क्यों बेखबर ये जमाना है, सब जान कर भी अनजाना है। रुचि के उसके इन कानों में कह अपना भाई तुम्हें माना है। मर तो गई हूँ भैया आज मैं, बलात्कारी जिंदा बाहर, आजादी से वो जी रहा है। क्यों खामोश अभी ये जमाना है, आज उसके साथ कल अपने साथ, साथ बैठ मिलके दर्द बांट, हिम्मत से बने हम एक आवाज। बलात्कारी को फांसी हो और ऐसी हो कि उसके जैसा दूसरा न कभी पैदा हो। बचपन में एक लाइन सुना था, लड़कियां पराया धन होती है। क्या उसका मतलब यही है? आई बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फॉर नाजिया, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर एवरीवन। वजीर केसीआर की जानिब से जेडपी चेयरमैन विठल राव को सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। जिले निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव की सालगिरह के मौके पर बरोज़ जुम्मा को हैदराबाद रवाना कर वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने मुलाकात करते हुए पौधा पेश करने पर वजीर आला केसीआर की जानिब से जेडपी चेयरमैन विठल राव को सालगिरह की मुबारकबाद देने के बाद जेडपी को दीन दयाल उपाध्याय स्वशक्ति अवार्ड आने पर खुशी का इजहार किया। इसके बाद इन्होंने रियासती वजीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी से मिलते वक्त इनके साथ दीगर पार्टी से वाबस्ता कायदीन सत्यम राव, रियासत के नौजवान कायद दादा नगारी संदीप राव भी मौजूद थे। टॉलीवुड फिल्मी अदाकारा त्रिशा ने राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजकारी अंजाम दी। टॉलीवुड फिल्मी अदाकारा त्रिशा ने राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम को भरपूर पजीराई मिलने के तहत और टॉलीवुड अदाकार प्रकाश राज के चैलेंज को कबूल कर फिल्मी अदाकारा त्रिशा ने चेन्नई में मौजूद अपनी रिहाइशगाह में पौधे लगाकर इस बात को ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने चाहने वालों को आगाह करते हुए कहा कि तमाम अफराद इज्तिमाई जिम्मेदारी के साथ अपने अपने घरों में पौधे लगाकर माहौल को खुशगवार बनाने के साथ माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाए रखने के लिए अपने अपने इलाकों में पेड़ पौधों की अफजाइश निहायत जरूरी है, क्योंकि माहौल में झाड़ पौधे और माहौल सरसब्ज होगा तो इंसानी जिंदगियों के लिए बहुत मुफीद साबित होने के साथ सेहत व तंदुरुस्ती कायम रहती है। इसके लिए हमें शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज को कामयाब बनाने का इजहार करते हुए राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार का शुक्रिया अदा किया।
ضلع نظام آباد بالکنڈ حلقے میں MLC انتخابات کے سیکٹوریل عہدیدار ششی کلا نے موضع ارگٹلا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں قیام عمل میں لائے گئے MLC انتخابات بوتھ کا سرسری طور پر جائزہ لیا۔ ضلع نظام آباد بالکنڈ حلقے میں MLC انتخابات کے سیکٹوریل عہدیدار ششی کلا نے منڈل کے موضع ارگٹلا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں قیام عمل میں لائے گئے MLC انتخابی بوتھ کا سرسری طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے MLC انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے منڈل کے تحصیلدار سریش اسائی ہری پرساد سے MLC انتخابات کے لیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے تعلق سے جانکاری حاصل کرتے ہوئے رائے دہی کو پرامن طور پر منعقد کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کو احکامات جاری کیے۔ اس پروگرام میں منڈل ریونیو پولیس عہدیداران و دیگر نے شرکت کی۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، خوف کے عالم میں عوام گھروں سے نکل پڑے۔ جمعہ کی رات 8:15 تا 9 بجے کے درمیان حیدرآباد شہر کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے نکل پڑے۔ جوبلی ہلز، رحمت نگر، بورا بنڈا، سائٹ 3، SPR ہلز کے علاقوں میں زلزلے کے تقریباً 12 جھٹکے محسوس کیے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ ہر بار 5 تا 10 سیکنڈ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رات 9 بجے کے بعد کافی دیر تک لوگ گھروں کے باہر ڈرے سہمے ہوئے کھڑے رہے، لیکن زلزلے کے جھٹکے محسوس نہ ہونے سے ایک کے بعد دیگر لوگ گھروں میں داخل ہو گئے، لیکن بورا بنڈا علاقے میں رات 11:25 پر 5 سیکنڈ کے لیے دوبارہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے عوام میں دوبارہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ بورا بنڈا کے عوام نے بتایا کہ ہر 3 سال میں ایک مرتبہ اس علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ جوبلی ہلز، رحمت نگر، بورا بنڈا، PR ہلز کے علاقوں میں مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد سڑک پر خوف کے عالم میں کھڑی ہوئی۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے سے عوام کے چہروں پر خوف واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ ان علاقوں میں بڑی بڑی عمارتیں اور تنگ سڑکوں کی وجہ سے عوام کا ازدحام دکھائی دے رہا تھا۔ رات دیر گئے تک لوگ جاگتے رہے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس نہ ہونے پر عوام میں راحت کا اظہار کیا گیا، لیکن ان علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے کی وجہ سے عوام خوف و تشویش میں مبتلا ہے۔ BJP دور حکومت میں زرعی شعبہ شدید متاثر، کسان مخالف بل سے کسانوں کو نقصان۔ سابقہ وزیر سدرشن ریڈی۔ موبکل منڈل میں کانگریس پارٹی کی نگرانی میں ایک بھاری اجلاس منعقد کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے منظور کردہ جدید زرعی بل کے خلاف دستخطی مہم منعقد کرتے ہوئے سابقہ وزیر سدرشن ریڈی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں کسان مخالف پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے کسانوں کو نقصان کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ مرکزی حکومت صرف اور صرف کارپوریٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے اور خود کو مستحکم کرنے کے لیے زرعی بل کو پاس کیا ہے، جبکہ اس زرعی بل سے آنے والے ایام میں کسانوں کو شدید نقصان ہوگا اور فصل کے نقصان ہونے پر جو MSP کسانوں کو ملتا تھا وہ اب نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسانوں کے مستقبل سے مودی حکومت نے کھلواڑ کرتے ہوئے کسانوں کو سڑک پر لایا ہے۔ اس بل کو فوری طور پر منسوخ کرتے ہوئے کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست میں کانگریس حکومت کی جانب سے پروجیکٹ کے تعلق سے کام صرف 6 سال میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن TRS حکومت سے ప్రాజెక్ట్ का काम मुकम्मल ना होने का इंकशाफ किया। ఈ దరిద్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం కేవలం 2.5 సంవత్సరాల్లోనే 10% చేసిన పనిని ఈయనకు కళ్ళు కనబడతలేదు కేసీఆర్ గారికి నటంతని ఆయన దగ్గర లోన్లు తెచ్చుకుంటూ లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడతాడు। మనము ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉంటాం। ఎవరిని చేస్తా ఉన్నాం నిర్లక్ష్యం? రైతులకు కూలీలకు చేస్తా ఉంటాం, కార్మికులకు ఈయన ఈ విధంగా చేస్తా ఉంటే ఇంత కష్టపడి పండించిన పంటకు మీ అందరికి తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్, సోనియా గాంధీ గారు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు మరి 2000 మీరు వడ్డ ధర ఎంతుండే? 530 రూపాయలు। అవునా? మొత్తం ధర ఎంతుండే? 460 రూపాయలు। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, साबिका MLC भूपति रेड्डी, मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, गंगा रेड्डी, शेखर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। बोधन के RDO राजेश्वर रेड्डी ने MLC इंतखाबात के तहत एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर का सरसरी तौर पर जायजा लिया। बोधन के RDO राजेश्वर रेड्डी ने बरोज़ हफ्ते को इस माह की 9 तारीख को मुनक़िद होने वाले MLC ज़िमनी इंतखाबात के तहत एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर में मौजूद पोलिंग बूथ का सरसरी तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 12 अफराद MPTC के वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए कहते हुए इन्होंने मुख्तलिफ अहदेदारान को पोलिंग के मुकाम के क़याम को फिलफुल मुकम्मल करने के साथ क़वानीन से मुकम्मल वाकिफियत हासिल करने और इलेक्शन कमीशन के बमशमूल कोविड-19 के क़वायद को मलहूज़ रखते हुए इंतखाबी
انتخابی عمل کو آگے بڑھانے کا اظہار کیا۔ پولنگ بوتھ کو مکمل طور پر سینیٹائزر کرنے کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ڈپٹی تحصیلدار رجنی، MPDO شنکر، RI چرن و دیگر نے شرکت کی۔ سوچھ بھارت میں تلنگانہ کو پہلا مقام، مرکزی وزیر شیخاوت نے ایوارڈ دیا۔ مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج سوچھ بھارت پروگرام میں تلنگانہ ریاست کو پہلا مقام حاصل ہونے پر ورچوئل طریقہ کار ریاستی عہدیداروں کو ایوارڈ حوالے کیا۔ ورچوئل کانفرنس میں محکمہ پنچایت راج و دیہی ترقیات کے سیکریٹری سندیپ کمار سلطانیہ اور کمشنر پنچایت راج M رگھونندن راؤ اور دوسروں نے اس ایوارڈ کو حاصل کیا۔ مرکزی حکومت نے گزشتہ سال پینے کا پانی اور صاف صفائی کے موضوع ایوارڈ کے لیے درخواستیں طلب کی تھی۔ 1 نومبر 2019 سے 30 اپریل 2020 تک سوچھ سندر سمودائک شوچالیہ پروگرام منعقد کیا تھا۔ اسی طرح 15 جون 2020 سے 15 ستمبر تک سمودائک شوچالیہ ابھیان منعقد کیا تھا۔ 8 اگست 2020 سے 15 اگست تک کمیونٹی بیت الخلاء کی تعمیر، اضلاع اور دیہی علاقوں میں کچرے کی نکاسی سے متعلق گندگی مکت بھارت پروگرام منعقد کیا تھا۔ ان تینوں پروگراموں میں مسلسل تیسری مرتبہ تلنگانہ ریاست کو ایوارڈ حاصل ہوئے ہیں۔ اقلیتی طلباء کو UPSC CSAT 2021 کی مفت تربیت۔ محکمہ اقلیتی بہبود تلنگانہ کے زیر انتظام خدمات انجام دینے والے تلنگانہ اسٹیٹ مائنرٹیز سرکل حیدرآباد نے تعلیمی سال 2020-21 کے دوران یونین پبلک سروس کمیشن UPSC CSAT 2021 سول سروس کی مفت کوچنگ کے لیے اقلیتی طلباء کے لیے مفت کوچنگ کا اعلان کیا ہے۔ ڈائریکٹر تلنگانہ اسسٹنٹ مائنرٹیز اسٹڈی سرکل جناب شاہ نواز قاسم IPS نے بتایا کہ خاتون امیدواروں کے لیے 33.33% اور جسمانی طور پر معذور امیدواروں کے لیے 5% تحفظات مختص کیے گئے ہیں۔ کوچنگ کے لیے امیدواروں کو انٹرنس ٹیسٹ میں شرکت کرنا ہوگا اور داخلے میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے۔ امیدواروں کے والدین یا سرپرست کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ 5 اکتوبر سے ویب سائٹ سے درخواستیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کوچنگ کے لیے جنرل پروفیشنل ڈگری کے امیدوار اہل ہوں گے۔ درخواستیں 15 اکتوبر تک داخل کی جا سکتی ہے۔ 23 اکتوبر کو صبح 10 تا 12 بجے دن اسکریننگ ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 04023261112 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے 2009 نئے کیسز اور 10 اموات۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2009 نئے کیس اور 10 اموات ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح سے ریاست میں کورونا کے متاثرین کی جملہ تعداد 1,95,609 ریکارڈ کی گئے اور جملہ اموات 1,145 ہو گئی ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ریاست میں فی الحال کورونا وائرس کے 28,620 سرگرم کیس پائے جاتے ہیں اور 23,372 مشتبہ مریضوں کو دواخانوں اور گھروں میں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ 2009 نئے کیسز میں گریٹر حیدرآباد کے 293، میرچل ملکاجگری 173، رنگا ریڈی 171، کریم نگر 114، نلگنڈا 109، کھمبم 104، عادل آباد 18، بودادری کوتاگوڑم 77، جگتیال 32، جنگاؤں 26 سے، شنکر بھوپال پلی 23، گدوال 25، کامریڈی 63، کمرم بھیم آصف آباد 19، محبوب نگر 31، محبوب آباد 43، منچیال 33، میدک 27، ملک 19، ناگر کرنول 40، نارائن پیٹ 8، نرمل 26، نظام آباد 63، پیدا پلی 29، راجن سلسلہ 52، سنگاریڈی 55، سدھی پیٹ 60، سوریا پیٹ 77، وقار آباد 23، ونپرتی 39، ورنگل رورل 31، ورنگل اربن 72، بوننگر 34 شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 2,437 کورونا کے مریض مختلف دواخانوں سے صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دی گئی۔ اسی طرح سے اب صحت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 1,65,884 ہو گئی ہے۔ ریاست میں صحت مند ہونے والوں کا جملہ تناسب 85% ہو گیا ہے۔ گزشتہ دن تقریباً 54,000 سے زائد کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اسی طرح سے ریاست میں اب تک 31,04,542 ٹیسٹ انجام دیے جا چکے ہیں۔ ریاست میں اب تک 1.95 لاکھ جو کورونا کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، ان میں سے صرف 30% افراد میں کورونا کی علامات پائی گئی، لیکن 70% افراد میں کوئی علامات نہیں تھی۔ محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے، علامات پائے جانے پر فوری قریبی دواخانوں سے رجوع ہو۔ جائیداد مالکین کو شخصی معلومات کی فراہمی ضروری، دھرنی پورٹل پر جائیدادوں کو رجسٹر کرانے کی مہم، عوام کو شخصی معلومات کی طلبی پر اعتراض۔ ریاست میں غیر زرعی جائیدادوں کے مالکین کو دھرنی لینڈ پورٹل پر اپنی جائیداد اور رجسٹر کرنے کے لیے کئی شخصی
तफसीलात पेश करने होंगे। धरनी पोर्टल पर जायदादों के इंदराज के लिए मालिक जायदाद को अपनी जात, अफराद खानदान की तफसीलात और इनकी तस्वीर के अलावा आधार और मोबाइल नंबर पेश करना होगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत राज महकमे जात की जानिब से बल्दी और ग्राम पंचायतों में मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो घर घर जाकर तफसीलात हासिल करें और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। हुकूमत ने अगरचे 12 अक्टूबर तक इस काम की तकमील की मोहलत दी है, लेकिन ओहदेदारों का कहना है कि स्टाफ की कमी व सर्वे के काम के लिए वक्त दरकार होगा, लिहाजा हुकूमत को मोहलत में तोसी करनी होगी। हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक मालिक जायदाद, मजहब, जात, आधार और मोबाइल नंबर का उसूल लाजमी रहेगा। अगर कोई शख्सी आधार, कैस्ट और अरकान खानदान के तफसीलात देने से इनकार करे तो इसके बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, इसकी वजाहत नहीं की गई है। हुकूमत ने 2014 में रियासत भर में जामा सर्वे के जरिए हर खानदान की तफसीलात हासिल की थी। हुकूमत ने पंचायत और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में शामिल नहीं की गई जायदादों को सर्वे के जरिए सरकारी रिकॉर्ड में लाने का फैसला किया है। गैर ज़रूरी जायदादों के मालिकीन को मेरवन क्लर्क की पट्टादार पासबुक जारी की जाएगी। दशहरे को धरनी पोर्टल के आगाज के बाद से पासबुक की जारी का आगाज होगा। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में कई जायदाद मालिकीन की जानिब से मुकम्मल तफसीलात पेश करने से इनकार किया जा रहा है। जीएचएमसी में मोबाइल नंबर, मकान नंबर और प्रॉपर्टी की तफसीलात बल्दी के पास मौजूद है, ताहम प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर, अरकान खानदान की तफसीलात, इनकी तस्वीर, पट्टा, पासबुक की पेशकशी लाजमी होगी। बल्दी हकाम की जानिब से तफसीलात के उसूल पर अवाम की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस बात का अंदेशा है कि हासिल करदा तफसीलात का किसी भी इदारे की जानिब से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सेहतयाबी के बावजूद 90 दिन तक कोरोना वायरस की जिस्म में मौजूदगी, नई तहकीक में हैरत अंगेज इंकशाफ, कोरोना की वाहिद वैक्सीन मास्क का इस्तेमाल। कोरोना वायरस के सिलसिले में एक नई तहकीक ने अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और वो वायरस से बचाव के सिलसिले में मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों के इलाज और सेहतयाबी की बुनियाद पर किए गए सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कोरोना से शदीद तौर पर मुतासर होने वाले शख्स में सेहतयाबी के 90 दिनों तक वायरस बरकरार रहता है और वो किसी भी वक्त दोबारा मुतासर कर सकता है। तजज़िये में पता चला है कि ऐसे मरीज दूसरों में वायरस फैला सकते हैं। वायरस की मुद्दत को देखते हुए डॉक्टर्स ने कोविड-19 के मरीजों के आइसोलेशन के वक्त में इजाफे की सिफारिश की है। अमेरिका के इदारा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने आदाद शुमार के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामूली असर की सूरत में इन्फेक्शन 10 दिन तक बरकरार रह सकता है। ऐसे अफराद जिन क़ुव्वत मदाफ़त कम हो वो 20 दिन तक मुतासिर रह सकते हैं, जबकि शदीद तौर पर बीमार अफराद में वायरस 90 दिन तक बरकरार रहता है। 90 दिन के बाद होने वाला कोई भी इन्फेक्शन कोरोना नहीं होता। बताया जाता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स में RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद इनमें कोई अलामतें नहीं पाई गई। इसी दौरान महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि कोविड-19 की वाहिद वैक्सीन मास्क का इस्तेमाल है, लिहाजा अवाम को कोरोना से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी कर लेना चाहिए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर जी श्रीनिवास के मुताबिक कोरोना से फौत होने वाले 45% अफराद वो थे जिनमें कोई दूसरी बीमारी नहीं थी, जबकि 55% अफराद में कोरोना के अलावा दीगर औरास पाए गए। इन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए अवाम अपने आप को इस मोहलिक वायरस से बचा सकते हैं। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुजूम के मुकामात से गुरेज करे। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत टैक्स आमदनी 5000 करोड़ रुपए घट गई। 3 माह में सिर्फ 20,000 करोड़ की आमदनी, जबकि 24,000 करोड़ से ज़ायद का कर्ज हासिल किया गया। सरकारी खजाने को कोरोना बहरान के बाद इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, ताहम टैक्स आमदनी तोखे के मुताबिक नहीं हो रही है। आदादो शुमार से इसका पता चल रहा है। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत अगस्त तक टैक्स आमदनी 5000 करोड़ रुपए घटी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की तफसीलात के मुताबिक मालियाती साल 2020-21 में अगस्त तक टैक्स आमदनी से 25,000 करोड़ रुपए वसूल हुए, जबकि मालियाती साल 2019-20 में अगस्त तक 30,000 करोड़ रुपए टैक्स आमदनी वसूल हुई थी। हुकूमत ने जारी साल मजमूई बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा आमदनी वसूल होने का तखमीना पेश किया था, ताहम अभी तक सिर्फ 24.66 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जबकि गुज़िश्ता साल बजट के तखमीने में अगस्त तक 36.78 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जारी साल आमदनी के आदाद शुमार का जायजा लेने पर पहले 2 माह में सिर्फ 5,382 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। गुज़िश्ता साल का जायजा लेने पर पहले माह अप्रैल में 5,226 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। कोरोना बहरान के बाइस पहले 2 माह में सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ।
माह जून से किसी कदर रियासती खजाने को राहत मिली है। जून से अगस्त तक 3 माह के दौरान का जायजा ले तो जून में 6,510 करोड़, जुलाई में 6,588 करोड़ और अगस्त में 6,677 करोड़ रुपए टैक्स की शक्ल में आमदनी हुई है। सिर्फ 3 माह में 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मालियाती साल के 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। अगर मुस्तकबिल में भी यही सूरत हाल रही तो हुकूमत का जो अंदाजा था वो गलत साबित हो सकता है। महकमे फाइनेंस के अहदेदारों का मानना है कि अगर आमदनी इसी कदर होती रही तो जारिया साल के आखिर तक मजीद 46,000 करोड़ हासिल होंगे। इसी तरह रियासत की जुमला टैक्स आमदनी 71,000 करोड़ तक महदूद हो जाएगी। बजट में जो आमदनी का अंदाजा लगाया गया था इसमें सिर्फ 70% आमदनी ही हासिल हुई है। गुज़िश्ता साल मजमूई बजट में टैक्स आमदनी के जरिए हुकूमत ने 49,047 करोड़ आमदनी हासिल होने का अंदाजा लगाया था, जिसमें 93.87% यानी 83,904 करोड़ रुपए वसूल हुए। हुकूमत ने बजट में जो अंदाजा लगाया था इसमें सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही कम हासिल हुए। ताहम इस साल सिर्फ 75% से ज्यादा आमदनी हासिल होने के इम्कानात नहीं है। बोधन में खवातीन पर जुल्म व ज्यादती के खिलाफ शहर में मानवा हक्कुल्ला वेदिका की निगरानी में पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया। उत्तर प्रदेश में मनीषा नामी दलित लड़की की असमत रेजी और कत्ल के साथ जिले मोइनाबाद नाजिया नामी लड़की असमत रेजी और कत्ल के खिलाफ मानवा हक्कुल्ला वेदिका की निगरानी में बोधन शहर में अम्बेडकर चौरास्ते के पास पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाते हुए कहा कि मुल्क में हो रही लड़कियों पर ज्यादतियां, असमत रेजी, दरिंदा सिफत और इंसानियत सोच, वहशियाना वारदातों से इंसानियत शर्मसार होती जा रही है और मुल्क व कौम पर बदनुमा दाग लगते जा रहे हैं और खवातीन गम और खौफ के माहौल में डूब गई हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत इस मामले में कोई भी सख्त इक़दाम करने या कानून में तरमीम करने में पसोपेश का मुजाहरा करने पर आज मज़कूरा तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस मौके पर दलित तबके से वाबस्ता कायदीन और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम में मानवा हक्कुल्ला वेदिका के जिले सदर गड़म गंगुलू, कायदीन मोहम्मद अहमद, मारुति व दीगर ने शिरकत की। ముస్లిం ఈ మైనారిటీ మహిళ ఈ సంఘాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలని, వీటి నాయకత్వాన ఈ పోరాటం విజయవంతం కావాలని, బోధనలో మీ అన్ని సంఘాలు కలిపి చేసినందుకు గాను మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बाईपास रोड पर वाक़े इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुम्मा को बाईपास रोड पर वाक़े इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का मुशाहिदा कर अहदेदारान से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि ज़ेर तामीरी कामों में तेजी लाते हुए दशहरे से कब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करते हुए तामीरी कामों के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान से जानकारी हासिल करने पर बारिश के बायस तामीरी कामों में ताख़ीर होने का अहदेदारान ने इजहार करते हुए कहा कि फिलहाल तामीरी कामों में तेजी लाने के साथ रोड वर्क, रोड साइड कंपाउंड वॉल, गेट कमान की तैयारी पाए तकमील के मरहले पर पहुंचने के ताल्लुक से कहने पर जिले कलेक्टर ने रोड लेवलिंग, ड्रम की कामों, ग्राउंड लेवल, कल्वर्ट प्रोग्रेस के कामों में तेजी लाने के लिए अहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में आरएनबी ई रामबाबू, आरडीओ रवि, जिम्मेदार अहदेदारान ने शिरकत की। అది కూడా అయిపోతుంది అది తప్ప ఇది ఒకటి సార్ మెయిన్ ఇది బాక్స్ కలర్ ఇది అయితే ఇది అవుతుంటుంది, ఇది అయిపోతుంది. ఇక రోడ్ వరకు ఇండివిజువల్గా రోడ్డు ఏం కాదు, ఇక నడుస్తున్నట్టు ఆ తర్వాత ఈ ల్యాండ్ ఇది అప్పుడు కనిపిస్తాం అప్పుడు. कल आईपीएल के 14वें मैच में हैदराबाद ने चेन्नई को 7 रन से हरा दिया। आज आईपीएल के 2 मैच होंगे। पहला मैच आरसीबी और आरआर के दरमियान खेला गया, जिसमें आरसीबी ने आरआर को 8 विकेट से हरा दिया और दूसरा मैच दिल्ली और कोलकाता के दरमियान जारी।
कल आईपीएल का 14वां मैच हैदराबाद और चेन्नई के दरमियान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए 164 रन बनाए। दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए चेन्नई की टीम 157 रन ही बना सकी। हैदराबाद ने इस मैच को 7 रन से जीत लिया और प्रियम गर्ग को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। आज आईपीएल के 2 मैच होंगे, जिसका पहला मैच आरसीबी और राजस्थान के दरमियान शेख जायद स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए, जिसमें बेंगलुरु की टीम ने 62 इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया। वहीं आज का दूसरा मैच दिल्ली और कोलकाता के दरमियान जारी है। हर तबके की तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी कोषा आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए अराजी व रकम का ऐलान। आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से आर्मूर शहर में क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए मंजूरी अमल में लाने पर क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने निजामाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचकर मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तरक्की के लिए कोशिशें करते हुए आर्मूर में क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए 2 एकड़ अराजी देने के साथ 1 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाने पर तमाम कायदीन ने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में क्रिश्चियन डेवलपमेंट एसोसिएशन चेयरमैन टी प्रभाकर रेड्डी के साथ क्रिश्चियन संगम के कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారికి యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలుపరుస్తున్నాం. క్రైస్తవులను గుర్తించి ఎంతగానో మా పట్ల శ్రద్ధ తీసుకొని మాకు ఎంతగానో మేలు చేస్తూ మమ్మల్ని బలపరుస్తూ అన్ని విషయాల్లో మాకు అండదండగా ఉండి మాకు సహకారిగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తుంటున్న ఎమ్మెల్యే గారికి మరి నిండు వందనాలు తెలుపరుస్తుంటున్నాం. ఈరోజు ఈ ఒక కార్యక్రమంలో మా కోసం ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కోసం కానీ మరి క్రిస్టియన్ భవన్ కోసం కానీ ఒక 2 ఎకరాలు కేటాయించడం జరిగి ఉంటున్నది. అదేవిధంగా మరి కలెక్టర్ దగ్గరికి కూడా కలవడానికి వచ్చి ఉంటున్నాం. కలెక్టర్ కూడా మాకు సానుకూలంగా స్పందించి మాకు దాన్ని సహకారిగా ఉంది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हाथों 21 एम्बुलेंस का इफ्तिताह। कोरोना की मुश्किल हालात में बड़ी राहत। तकरीब में आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। दशहरे से कबल जदीद कलेक्ट्रेट के कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी ओहदेदारान को हिदायत। दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ का आगाज। कोरोना वबा के मद्देनजर क़व्वाली मंसूख। महदूद अंदाज में उर्स शरीफ का इनेकाद। एमएलसी इंतखाबात के लिए जिले में तैयारियां जोरों पर। तमाम ओहदेदार तैयारियों में मसरूफ। हर तबके की तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी कोषा आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए अराजी व रकम का ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।